Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 9, the priceless slippers of your Wordsworth English Reader book, and I had explained the word meanings and the meaning of the phrases to you. Now, today I'm going to read and explain this lesson. So, all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 87, lesson 9, the priceless slippers. Children, please take out your Wordsworth English Reader book, turn to page number 87, lesson 9, the priceless slippers. Now, children, today I'm going to read and explain this lesson to you. I'm sure all of you must have written the word meanings and the meaning of phrases in your English notebook. Lesson 9, the priceless slippers. In a little village, there lived a poor man who was so tired of being poor that his sole aim in life was to become rich and have a lot of money. In his desperation, he had tried many means of making money, but he didn't get any satisfactory results. Then one day, someone told him of a great Sufi saint, Hazrat Nizamuddin Aulia, who lived in Delhi. The poor man was told that the saint was a very kind man with extremely wealthy followers. Now, students, this lesson is about a poor man who lived in a little village. एक बहुत ही पुअर मैन था जो एक छोटे से गांव में रहता था एंड वो इतना मतलब थक चुका था अपनी गरीबी से कि उसकी पूरी लाइफ में बस उसका एक ही एम था दैट ही वांटेड टू बिकम रिच एंड हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड उसने बहुत कोशिश की कि ही वुड अर्न मनी बट ही कुडंट सक्सेस सो ही वाज पूरी तरह से वो होपलेस निराश हो चुका था. देन वन डे समवन टोल्ड हिम, एक दिन उसको किसी ने बताया, द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया हु लिव्ड इन दिल्ली. किसी ने उस पुअर मैन को बताया कि एक बहुत अच्छे सूफी सेंट है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में रहते हैं, है ना. एंड ये भी उसको पता चला कि जो सेंट है वो बहुत ही काइंड है, बहुत दयालु है और उनके एक्सट्रीमली वेल्दी फॉलोअर्स हैं. उनको जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग उन पे विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, वो बहुत ही रिच हैं. Surely he will give me enough money to start a new business and then I will be a rich man, thought the villager to himself. अब विलेजर ने मन ही मन सोचा कि अब मैं अगर उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे इतना पैसा तो दे ही देंगे कि मैं जिससे कि नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं और मैं एक रिच मैन बन जाऊं. टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज 88. The very next day he set off for Delhi where the Sufi saint stayed. He had to walk all the way as he could not afford to travel on a horseback. अब अगले ही दिन वो जो पुअर मैन था वो सूफी सेंट से मिलने के लिए दिल्ली चल पड़ा. एंड वो तो किसी छोटे से गांव में रहता था एंड ही वॉज सो पुअर, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है. पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स तो होते नहीं थे, तो generally people used to ride on a horseback to travel from one place to another, but this man was so poor that he didn't even have a horse to ride, so he had to walk down. उसको पूरे समय पैदल ही चलना पड़ा. Tired and hungry, the poor man arrived at the home of the saint at last. The Sufi greeted him kindly and one of his followers guided him to where he could wash himself and brought him food to eat. After taking some rest, the villager told the Sufi the purpose of his visit. अब वो बेचारा चलते चलते somehow the poor man managed to reach Delhi to Saint Nizamuddin Aulia's place. अब वो इतना थक चुका था पुअर मैन, बिकॉज वो पूरे वॉक करके आते. He was so poor he couldn't even afford horse, so he was tired, he didn't have money to buy food, so he was hungry also. Finally वो सूफी सेंट के हजरत निजामुद्दीन औलिया के वहां पे आया. सूफी ने उसको ग्रीट किया, उसका जो स्वागत है बहुत अच्छे काइंडली से किया और सूफी के एक फॉलोअर ने उसको उस पुअर मैन को गाइड किया जहां उसने अच्छे से वॉश लिया एंड वॉज गिवन फूड टू ईट. अब आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, थोड़ी देर आराम करने के बाद, द विलेजर टोल्ड सूफी अबाउट द पर्पस ऑफ हिज. विलेजर ने सूफी सेंट को बताया कि वो उनसे मिलने क्यों आया. ही टोल्ड कि दैट ही नीडेड मनी, ही वाज एक्सट्रीमली पुअर. Why is it so important for you to have
money? The Sufi asked. तो सूफी ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे लिए मनी होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? The villager recounted his woes. I don't have enough money to even eat or clothe myself. If I have a lot of money, I will never have to worry about these things. I'll be happy. तब सूफी ने बताया कि मेरे अपने सारे दुख विलेजर ने सूफी सेंट को बताए कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अच्छे से खा पाऊं और अपने लिए कपड़े खरीद पाऊं। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मुझे इन सब खाने पीने कपड़े की चिंता नहीं करनी होगी और मैं हमेशा हैप्पी रहूंगा। You're welcome to stay here for as long as you want. You will never be hungry here and will be always decently attired, the Sufi assured him. तो सूफी ने बोला कि तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, है ना, और मैं तुम्हें मतलब ये कहता हूँ कि तुम यहाँ कभी भी हंगरी नहीं रहोगे, तुम्हें हमेशा खाना मिलेगा और तुम्हें हमेशा अच्छे से कपड़े भी मिलेंगे पहनने को। सूफी ने उसको अश्योर किया कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हें खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा। सूफी ने उसको अश्योर किया विलेजर को। बट द विलेजर वॉज एडमेंट। एडमेंट का मतलब कि विलेजर जो सोच के आया था उसको तो वही चाहिए था, वो मानने को तैयार नहीं था। ही हैड थॉट कि सूफी विल गिव हिम अ लॉट ऑफ मनी, सो ही वॉज एडमेंट कि मुझे तो पैसा ही चाहिए। ही वॉन्टेड मनी. For him, that was the only solution to his problems. He wanted to continue living in his village, start a business and live in a comfortable house. अब विलेजर ने तो सोचा था कि नहीं, वो तो उसको तो पैसा ही चाहिए जिससे कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और वो वापस अपने गांव चला जाएगा, वहां पे वो बिजनेस स्टार्ट करेगा और आराम से एक घर में कंफर्टेबली रहेगा। The Sufi asked him, "Why did you come to me? I'm not a rich man, but there are many rich men in Delhi from whom you may go and ask for money." तो सूफी ने उससे पूछा कि तुम मेरे पास ही क्यों आए हो? मैं तो कोई रिच मैन नहीं हूं, है ना, और दिल्ली में तो बहुत सारे और रिच लोग हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें पैसा दे सकते हैं। आई एम नॉट अ रिच मैन. The man said that he had thought of that, but knew from experience that the rich were never eager to part with their wealth. I had heard that you never turn your back on anyone, so I came to you. तो उस आदमी ने बोला, वो विलेजर ने, कि हाँ, मैंने सोचा था कि दिल्ली में बहुत सारे रिच लोग हैं, बट मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, दौलत होती है, वो कभी भी अपने पैसे से अलग नहीं होते, वो किसी की हेल्प नहीं करते हैं, है ना। और मैंने ये भी सुना है कि आप जो है ना, वो कभी भी किसी को निराश नहीं करते, जो आपसे मांगता है आप हमेशा उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। द सूफी स्लोली नॉडेड हिज हेड बट सेड नथिंग. जो सूफी सेंट थे उन्होंने अपना सिर ऐसा हिलाया बट कुछ भी नहीं बोला. He remained busy the rest of the day. There were prayers to be said, visitors to be met, and students to be taught. He continued his normal routine. सूफी ने विलेजर को कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो पूरे दिन बिजी रहते थे, अपने काम में लग गए. उनको प्रेयर्स करनी थी, है ना, विजिटर्स टू बी मेट, जो उनसे मिलने वाले आए थे उनसे मिलना था, और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना था सूफी को. तो सूफी ने अपना नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू किया. ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग. The villager waited patiently for the Sufi to summon him and gave him money or ask one of his wealthy friends to give him some. अब जो villager था वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था कि सूफी विलेजर को बुलाएंगे या पैसा देंगे या किसी अपने वेल्दी फ्रेंड से, पैसे वाले फ्रेंड से उसको पैसा दिलवाएंगे. 2 days passed and he was getting impatient. अब 2 दिन बीत गए. सूफी तो अपने नॉर्मल रूटीन में थे, प्रेयर्स करना, विजिटर्स से मिलना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना. कुछ नहीं बोला और ये विलेजर वेट कर रहा था कि भाई वो मुझे बुलाएंगे या किसी अपने वेल्दी फ्रेंड से मुझे पैसा दिलाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. On the 3rd morning, he realized that his trip to Delhi was not going to bear fruit and it was time for him to leave for his village. अब तीसरे दिन सुबह उस विलेजर को लगा कि मैं जो दिल्ली जो सोच के आया था, है ना, जो जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ और अब अच्छा है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं. He had been taken care of very well. He had not been hungry, nor had he slept so comfortably in a long time, but money was not given to him. और 2-3 दिन जितने भी दिन वो विलेजर वहां रहा सूफी के वहां, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया. वो कभी भी भूखा नहीं सोया, उसको खाना दिया गया और वो इतने आराम से सोया जितना वो अपनी बहुत दिनों से वो इतने आराम से नहीं सोया था, जितना आराम से वो कंफर्टेबली सूफी के वहां सोया था. Feeling disappointed,
he went to say farewell to the सूफी। अब विलेजर को लगा कि भाई अब तो यहाँ मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। वो बहुत निराश हो गया और उसने सोचा कि अब मैं सूफी से विदाई लेके और फेयरवेल लेके वापस अपने गांव जाता हूँ। Are you leaving? But I can't let you go empty handed. सूफी के पास जब वो गया बोलने कि मैं जा रहा हूँ, तो सूफी ने बोला अच्छा तुम जा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। The villagers' hopes were raised. अब विलेजर्स की जो उम्मीद थी वो जाग गई। उसको लगा कि अब सूफी ने बोला है कि खाली हाथ नहीं तुम्हें जाने दे सकता। That means he's going to give me something. The Sufi took out his worn-out slippers and gave them to the villagers, saying, "You have a long and dusty journey ahead of you. These slippers may be useful. I only own what I wear, so I will give you these with my blessing." तो सूफी ने बोला कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। ये कहते हुए सूफी ने अपनी वर्न आउट मतलब यूज्ड घिसी हुई चप्पलें स्लिपर्स निकाली और विलेजर को दे दिया। और इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, सूफी अपनी जो वर्न आउट पुरानी घिसी हुई चप्पलें हैं वो किसको दे रहा है? पुअर विलेजर को ही इज हैंडिंग ओवर। एंड सूफी ने कहा विलेजर को कि तुमको भी बहुत दूर पैदल चल के वापस जाना है अपने गांव, तो ये जो स्लिपर्स हैं तुम्हारे काम आएंगी, चलने में तुमको मतलब ये काम आएंगी। और मेरा वही है जो मैं पहनता हूं, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। सूफी सेठ ने कहा, क्योंकि वो तो सेंट थे, कि मेरे पास और कुछ नहीं है, जो मैं पहनता हूं बस वही मेरा है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये कहते हुए सूफी ने अपनी वर्न आउट पुरानी घिसी हुई चप्पलें विलेजर को दे दी। The villager was shocked, but he did not show his surprise as he respected the saint and did not want to insult him. और विलेजर ने तो सोचा था कि उसको बहुत पैसा वगैरह मिलेगा, लेकिन उसको उसके बदले में क्या मिला? पुरानी घिसी हुई स्लिपर्स मिली। तो विलेजर को बहुत शौक लगा था, लेकिन उसने अपना जो शौक है, सरप्राइज है, वो सूफी को जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो सूफी की बहुत रिस्पेक्ट करता था और वो कुछ भी बोल के या कुछ भी एक्सप्रेस करके सूफी की इंसल्ट नहीं करना चाहता था। Then the world talks of Hazrat Nizamuddin Aulia, but in reality he is as poor as me. विलेजर ने सोचा कि पूरी दुनिया बात करती हजरत निजामुद्दीन औलिया की, लेकिन असली में क्या है? वो तो उतने ही गरीब हैं जितना कि मैं गरीब हूँ। Thought the villager to himself, ऐसा विलेजर सोचने लगा। He then left Delhi with the pair of slippers in his bundle. और आप देख सकते हो विलेजर के पीठ पे एक बंडल लटका हुआ है, पोटली लटकी हुई। उसने सूफी की वो चप्पलें अपने बंडल में रख ली एंड वो अपनी जर्नी उसने स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स हिज विलेज। He was afraid that the people of his village would laugh at him when they would see or hear of the gift that the saint had given him. अब उसको यही डर लग रहा था कि जब उसके गांव वालों को पता लगेगा कि ये तो सूफी के पास गया था और वहां से उसको मिला क्या? घिसी हुई पुरानी स्लिपर्स, और सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। As the villager was walking in the hot sun, he saw a great cloud of dust coming towards him. अब जैसे विलेजर जा रहा था धूप में, चलता रहा था, तभी उसको एक धूल का पूरा बादल जैसा अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। As he watched, he saw a magnificent horse galloping towards him. जैसे उसने देखा तो उसको देखा कि एक बहुत शानदार घोड़ा उसकी तरफ गैलप करके आ रहा है। An equally magnificent rider was seated on the horse. और घोड़े के ऊपर एक बहुत ही शानदार आदमी सवार था। The horse and the horseman drew nearer and stopped in front of the villager. वो जो घोड़ा और घुड़सवार आके एकदम विलेजर के सामने रुक गए। The striking horseman got off the horse and pointed to the bundle and said, "You lucky men, are you coming from the great saint with a priceless gift?" और वो घुड़सवार जो घोड़े पे सवार था वो उतरा और उसने बंडल की तरफ पॉइंट करते हुए विलेजर से कहा, "You lucky man, तुम क्या जो ग्रेट सेंट हैं उनके पास से आ रहे हो और तुम्हारे इस बंडल में एक प्राइसलेस, जिसकी कोई मतलब बेशकीमती गिफ्ट है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है ना, जो बहुत वैल्यूबल है। प्राइसलेस यहाँ पे दो मीनिंग है। विलेजर के लिए तो वो चप्पल प्राइसलेस थे, मतलब बेकार थे, और उस हॉर्समैन के लिए वो जो प्राइसलेस मीन्स कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं
लगाई जा सके। यहाँ प्राइजलेस के दो मीनिंग्स है बेटा, क्योंकि विलेजर के लिए तो बस वो पुरानी चप्पल थी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उस हॉर्स राइडर के लिए वो जो स्लीपर्स थे वो बहुत प्राइजलेस थे, है ना, कि कितना भी पैसा दे दो उसको खरीदा नहीं जा सकता। The poor man stammered that it was indeed a gift that the saint had given him, but it was far from priceless. अब वो जो विलेजर था वो एकदम हकबका गया कि अरे इसको कैसे पता कि मेरे पास बंडल में एक सच में प्राइसलेस, एकदम जिसकी कोई कीमत नहीं, एक पुरानी चप्पल है जो मुझे सूफी सेंट ने दी है। He wondered aloud how the stranger knew that the villager had been to meet the saint. और वो सोचने लग गया इसको ये हॉर्स राइडर को कैसे पता कि मैं सेंट से मिलके आ रहा हूं और मेरे पास बंडल में सेंट का दिया हुआ कुछ सामान है। I recognize the sweet fragrance of my lord from the bundle that you carry. He introduced himself as अमीर खुसरो। अब जो हॉर्स राइडर थे उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं अमीर खुसरो हूं, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बंडल में से एक बहुत अच्छी स्वीट फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू आ रही है जो मेरे लॉर्ड की है ना, मेरे भगवान की है, और तुम्हारे बंडल से आ रही है जिसमें जो तुम कैरी कर रहे हो। और उसने बताया हॉर्स राइडर ने कि वो कौन थे, अमीर खुसरो। The villager showed him the pair of slippers and to his surprise, Amir Khusro picked them up reverently and held them to his head. और जैसे ही विलेजर ने वो चप्पलें उनको दिखाई स्लीपर्स, तो अमीर खुसरो ने वो स्लीपर्स उठाई और अपने सिर पे लगा ली। यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, है ना, कि कैसे वो सूफी की वॉर्न आउट स्लीपर्स को अपने सिर पे लगा रहे हैं, है ना। आपने देखा है ना, अगर हम भी कभी मंदिर वगैरह जाते हैं तो भगवान जी की खड़ाऊ लगी रहती है, उसको हम सिर पे लगाते हैं कि ये हमारे भगवान के पांव छूते हैं, उनकी चप्पलें हैं करके। तो उसी तरह पूरी इज्जत के साथ उन वर्न आउट स्लीपर्स को अमीर खुसरो ने अपने सिर पे लगा लिया। Be kind and give me these slippers for a bag of gold that I've earned for 6 months of work for the emperor. You can also have my horse and my robes. और अमीर खुसरो ने विलेजर से कहा कि मेरे पे दया करो और मुझे ये स्लीपर्स दे दो, और इसके बदले में मैं तुम्हें एक बैग ऑफ गोल्ड दूंगा जो मैंने 6 महीने एम्परर राजा के वहां पे काम करके कमाया है, और मैं एक बैग ऑफ गोल्ड के साथ साथ तुम्हें अपना हॉर्स और ये जो बढ़िया बढ़िया जो मैंने कोट वगैरह पहना है ये सब तुमको मैं दे दूंगा। The villager was astounded, but he readily agreed to part with the slippers for the unequal amount. अब villager तो बहुत खुश हो गया, वो तो खुश था कि अरे मुझे इस पुरानी चप्पलों के बदले एक बैग ऑफ गोल्ड, एक हॉर्स, मैग्निफिसेंट हॉर्स, और बढ़िया बढ़िया जो कपड़े पहने हुए थे अमीर खुसरो सब दे रहा है, और वो तुरंत मान गया। बोथ मेन वर डिलाइटेड। अब दोनों ही खुश थे क्योंकि अमीर खुसरो को जो चाहिए था वो मिल गया, अपने लॉर्ड की स्लीपर्स, और पुअर विलेजर को मनी चाहिए था, वो उसको मिल गया। बोथ मेन वर डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी विद देयर एक्सचेंज। दोनों ने एक्सचेंज किया, अमीर खुसरो ने अपना बैग ऑफ गोल्ड, हॉर्स, रोप सब दे दिया, और उसके बदले में विलेजर ने पुरानी सूफी की स्लीपर्स अमीर खुसरो को दे दी। ईच थॉट दैट ही हैड गेन्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। और दोनों ही सोच रहे थे विलेजर के लिए मनी, हॉर्स और रोप सबसे बड़ा खजाना था, और अमीर खुसरो के लिए अपने लॉर्ड की स्लीपर्स ही सबसे बड़ा खजाना थी। अमीर खुसरो लेफ्ट फॉर दिल्ली एंड द पुअर विलेजर रिटर्न्ड अ रिच मैन। अमीर खुसरो दिल्ली चला गया और जो पुअर विलेजर था वो रिच मैन बन के वापस अपने गांव गया। Never again in his life did he have to worry about his food or clothing and he lived happily. और फिर पूरी लाइफ विलेजर को कभी भी अपने खाने और कपड़े के बारे में नहीं सोचना था, because he had become a rich man. Needless to say, he became a devout follower of the Sufi whose humility he could never forget. अब ये घटना के बाद से तो वो विलेजर एकदम भक्त बन गया था, किसका, सूफी सेंट का, कि सूफी ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कोहे उसको सब कुछ दे दिया था, और जो विलेजर कभी भी नहीं भूल सकता था। Later, the poor villager came to know that Amir Khusro was a great musician and poet, as well as the most famous disciple of Hazrat Nizamuddin Aulia. और बाद में विलेजर को पता लगा कि अमीर खुसरो जो था वो हजरत निजामुद्दीन औलिया का सबसे फेमस शिष्य था, है ना, और वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन और पोएट भी थे। He wrote in Persian, Arabic and Hindi, और अमीर खुसरो 3 लैंग्वेजेस में लिख सकते थे, that was Arabic,
Persian and Hindi. And he is considered to be the inventor of tabla and the Hindi language. और ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही तबला, जो तबला बजाते हैं, उसको इन्वेंट किया और हिंदी लैंग्वेज. He was buried near the tomb of हजरत निजामुद्दीन औलिया in Delhi. और जब अमीर खुसरो की डेथ हुई तो उनको भी कहाँ पे बरी किया गया, कहाँ गाड़ा गया? जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया को दफनाया गया था, वहीं पे उनको भी पास में ही दफन किया गया. So with this, I have explained this lesson, children. Fine. Now let's start with comprehension exercise A. This exercise has to be done in the book itself. So please take out your books, page number 91, exercise A. Complete the following sentences. This exercise, children, has to be done in the book only. Yeah? And our first sentence is Hazrat Nizamuddin Aulia lived in Hazrat Nizamuddin. Since now you all must have read this lesson, so it will be easier for you. Aulia lived in the first blank, please write Delhi. Capital D-E-L-H-I. Second, the villager went to see the Sufi because now start writing. He thought, T-H-O-U-G-H-T, he thought that the Sufi saint was a kind man and would give him enough money to start a new business. The villager went to see the Sufi because he thought that the Sufi saint was a kind man and would give him enough money to start a new business. Then the third one. The villager didn't go to any rich man because the rich were never eager to part with their wealth.
villager didn't go to any rich man because the rich were never eager to part with their wealth. I hope all of you have done these three fill in the blanks, children. First one, Hazrat Nizamuddin Aulia lived in Delhi. Second, the villager went to see the Sufi because he thought that the Sufi saint was a kind man and would give him enough money to start a new business. Third, the villager didn't go to any rich man because the rich were never eager to part with their wealth. Now I'm going to erase and write the fourth one, children. Now, the fourth one. The villager thought that the people of his village would laugh at him because the Sufi saint had given his worn out slippers as a gift to him. The villager thought that the people of his village would laugh at him because the Sufi saint had given his worn out slippers as a gift to him. So with this, children, we have completed our exercise A of comprehension. That's all for today. Now with this, I end today's video. Do read this lesson so that you'll be able to easily comprehend the question and answers, which I'm going to continue in my next video. Thank you, children. Have a good day ahead.